Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how much energy is required to ionize a hydrogen atom if the electron occupies n is equal to 5 orbit? ठीक है. Compare your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom, energy required to remove the electron from n is equal to 1 orbit. So let's do the question. But you see, in the hydrogen atom, suppose the electron occupies of the orbit n is equal to 5. ये आपका ऑर्बिट है where the electron is there. ठीक है. So to ionize this hydrogen atom को ionize करने के लिए what we need to remove one electron from the existing orbit. इलेक्ट्रॉन जहां पे भी है वहां से आपको उसको निकालना पड़ेगा. ठीक है. सो फॉर दिस वी हैव टू डू ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी. जब आप इंफिनिटी में इसको ट्रांजिशन करोगे देन ओनली दिस इलेक्ट्रॉन विल रिमूव फॉर द एटम फ्रॉम द एटम एंड इट विल गेट आयनाइज्ड. ठीक है. So when the electron is existing in the orbit n is equal to 5 and it is having a transition to n is equal to infinity, then for this transition, suppose the energy of this orbit is E5 and that of this is E infinity, then the energy difference between these two orbit, that is the energy required to ionize the atom if the electron is residing in the फिफ्थ ऑर्बिट. ठीक है. सो इन दोनों ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा because that much of energy is required to ionize the hydrogen atom in this condition. ठीक है. So delta E आपका क्या हो जाएगा बच्चों? Delta E is equal to energy of the infinity orbit minus energy of the fifth orbit. And as you know, the expression for the energy of hydrogen atom En is given by minus 221.8 into 10 to the power minus 9 divided by n square joule per atom, where n is the orbit. ठीक है. So for E infinity what will happen? Minus 21.8 into 10 to the power minus 19 divided by, this is infinity. ठीक है. And minus, that is of E5, that will be minus 21.8 into 10 to the power minus 19 divided by 5 square जूल एटम, जूल पर एटम. ठीक है. तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देन दिस वैल्यू विल बी 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. कॉमन चला जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट इज 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, दैट इज योर जूल पर एटम and this value is your 0. ये आपका 0 हो जाएगा. Then this is the energy difference will be 21.8 into 10 to the power minus 19 divided by 25 joule per atom. ठीक है. And this is on calculation you can get this is 8.72 into 10 to the power minus 20 joule. तो बच्चों ये जो एनर्जी डिफरेंस आया है, दिस एनर्जी डिफरेंस दैट इज 8.72 into 10 to the power minus 20 joule जो है, that is the required energy to ionize the hydrogen atom if the electron is in the fifth orbit. ठीक है. But we have to, in the next segment of the question, what is it? It is given that the ionization enthalpy of hydrogen atom. The ionization enthalpy क्या होता है? When the electron is in the state n is equal to 1, जब आपका ये n is equal to 1 होता है and then you have to remove it to n is equal to infinity. So जो इस transition के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दैट एनर्जी इज योर आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है हाइड्रोजन एटम के लिए? बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट. ठीक है. तो फर्स्ट ऑर्बिट से जब ये इंफिनिटी में ट्रांजिशन होगा देन द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस एन इज इक्वल टू ई इंफिनिटी माइनस ई वन. ठीक है. तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा? E infinity minus E1. This energy is called your ionization energy for hydrogen atom. तो बच्चों हाइड्रोजन एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. सो E infinity के लिए हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी. ठीक है. यहाँ पे इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर. ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा. माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 1.
ठीक है, दिस इज योर जूल पर एटम, ठीक है, जूल पर एटम। नाउ इफ यू डू द कैलकुलेशन देन सिंपल आपका जो डेल्टा ई दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम इनको डेल्टा ई डैश एक्सप्रेस करें देन दिस वैल्यू विल बी सिंपली इट इज 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, और यहाँ पे जूल पर एटम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये टर्म आपका 0 हो जाएगा एंड दिस इज प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। दिस इज द एनर्जी दैट इज योर, इसका एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द इंफिनिटी। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू द, वी हैव टू कंपेयर द आंसर। ठीक है, कंपैरिजन में व्हाट वी गॉट द आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज डेल्टा ई डैश इज इक्वल टू 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल पर एटम। ठीक है, और जो हमारा एनर्जी डिफरेंस आया था व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिसाइडिंग इन द फिफ्थ ऑर्बिट, ये कितना आया था 8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। सो इट इज 8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल पर एटम। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे देन डेल्टा ई दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय डेल्टा ई इज इक्वल टू 25। that means ionization energy is, it is the 25 times that is the energy of the एनर्जी रिक्वायर्ड। जब ये आपका क्या है, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज योर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट दैट इज n इज इक्वल टू 1 टू द इंफिनिटी is 25 times that is the energy required from removing the electron from the orbit n is equal to 5 to n is equal to infinity। ये आपका ट्रांजिशन है फ्रॉम 5 टू इंफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी है 1 टू n is equal to infinity। तो बच्चों ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी हुआ and this is 25 times that is the energy required to have a transition from fifth orbit to infinity। So बच्चों this is the answer। I hope you understood well। Best of luck।